लोग बैठ जाए अपने अपने स्थान में। How many of you are enjoying the school of Holy Spirit? कितने लोग स्कूल ऑफ हॉली स्पिरिट की आनंद उठा पा रहे हैं? How many of you are learning new things? कुछ नई बात कितने लोग सीख पा रहे हैं? How many of you are desiring for more glory of God? परमेश्वर की ज्यादा महिमा के लिए कितना लोग चाहत रखते हैं? Wow. In the morning session, I could see Jesus touching people. When I see Jesus touching people, I am not comfortable in preaching once I see Jesus touching people. आज सुबह की सत्र में मैंने देखा है कई लोगों को प्रभु यीशु मसीह छू रहा था। जब प्रभु यीशु छूता है, I could physically see Jesus. So once I see physically Jesus, it's very tough for me to minister because I have learned over the years that when Jesus touches people, it's always good to sit back and see what Jesus is doing. यीशु मसीह व्यक्तिगत रूप से कई लोगों को छूते हुए मैंने देखा। मेरा सेवकाई के अनुभव में जब भी यीशु किसी को छूता है, मैं उतना कंफर्टेबल नहीं रहता हूँ सेवकाई में आगे जाने के लिए। The beauty with the understanding of the realm of God's glory is God will never manifest His glory beyond the revelation that we have. और जो प्रकाशन हम रखते हैं, इससे बढ़कर परमेश्वर अपना कार्य नहीं दिखाते, His glory. और उसकी महिमा को नहीं दिखाते, His power is manifested beyond our understanding. और हमारा समझ के परे वो अपनी सामर्थ्य को प्रकट करता है। But the glory He will not manifest. लेकिन महिमा वैसे नहीं प्रकट करता है। The more you have the revelation, the more glory you will see. जितना अधिक प्रकाशन आपके अंदर में होगा, उतना अधिक महिमा आप देखेंगे। Many people ask me, Pastor, why do you always speak about the glory of God? कई लोग मुझसे पूछते हैं, पासवान अक्सर आप महिमा के बारे में क्यों बोलते हैं? I preached my first sermon when I was 10 years old. और मैंने पहली प्रचार 10 साल की उम्र में किया है। Because I am a pastor's son. क्योंकि मैं एक पासवान की बेटा हूँ। I assumed that the little boy playing the drums was pastor's son. और मुझे लग रहा है कि पासवान की बेटा था जो ड्रम बजा रहा था। So pastor's sons have always special privileges. क्योंकि पासवान की बेटा होने के नाते उनको कुछ विशेष मौका भी मिलते हैं। So I preached when I was 10 years. और मेरी उम्र 10 था, उस समय मैंने प्रचार किया। And my message was about the Holy Spirit. और मेरा प्रचार का विषय पवित्र आत्मा ही था। So from 1992 till 2016, close to 24 years, my main message was Holy Spirit. 1992 से 2016 तक करीब 26 साल मैं एक ही विषय के ऊपर मैं प्रचार किया हूँ, वो पवित्र आत्मा But था। something happened in 2016 and I started preaching about the glory of God. लेकिन 2016 में कुछ अलौकिक अनुभव हुआ, तब से मैं परमेश्वर की महिमा की प्रचार करने लगा। As I said, I have two spiritual mentors in my life. जैसे मैंने कहा, मेरे लिए 2 आत्मिक मेंटर्स होते हैं। They both are mentoring me for the last 14-15 years. और पिछले 14-15 साल से वो मुझे सहायता करते हैं मेंटरिंग में। One is Pastor Finney Stephen. और एक है पासवान फिन्नी स्टीफन। He was the reason why I'm here. और उनके कारण मैं यहाँ पर आ पाया है। Because I always obey him. If he tells me to do something, I do that. क्योंकि मैं उनके लिए आज्ञाकारी बना हूँ, जब भी वो कुछ करने के लिए कहते हैं मैं मानता हूँ। This month of May, I decided not to travel anywhere. और मई महीना में कहीं भी यात्रा करने के लिए मैंने सोचा था। Because my wife in her mid-40s is pregnant for the 4th time and she is fully pregnant. Any time the delivery can happen. और प्रभु का दास की पत्नी जो है गर्भवती है, कभी भी डिलीवरी हो सकते है, ऐसे एक समय में है। We are expecting our 4th baby. और हम अभी हमारा चौथा बच्चे की इंतजार And में। she is in her mid-40s. और वो 40 साल की उम्र की है। And no, mid-40s. 40 सप्ताह हो गया है। And so I was thinking I will not travel anywhere. और मैंने सोचा था हम यात्रा नहीं करेंगे कहीं, Because any time the delivery can happen. क्योंकि कभी भी डिलीवरी हो सकता है। So I was fully at home. और हम घर में ही रुकना चाहा। But because my spiritual mentor says to go, I go. और मेरा स्पिरिचुअल मेंटर कहा यहाँ चलने के लिए, मैं आ गया हूँ। And I believe it is the plan of the Holy Spirit for all of us. और हम सभीयों के लिए एक प्रभु की योजना भी है, मैं विश्वास करता That you हूँ। all will be shifted from the realm of anointing to the realm of the manifestation of God's glory. और हम अभिषेक की क्षेत्र से महिमा प्रकट होने की क्षेत्र की ओर हम जाने वाले हैं। Only there is one lady who is excited.
एक ही बहन है जो हाथ उठाकर आनंद मनाई है, That too, she looks very normal. क्योंकि वो एक साधारण जैसे दिखते भी हैं। All the other educated people did not respond. जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं किया, She is a very ordinary woman and she immediately responded. और वो एक साधारण एक स्त्री के समान दिखती है, लेकिन उन्होंने प्रतिक्रिया किया। This is why even in the Bible, normal people were used to manifest the glory of God. इसलिए बाइबल में लिखा है साधारण लोग परमेश्वर की महिमा को प्रकट किया है। My other spiritual mentor is Pastor Chandi Varghese, और मेरा दूसरी आत्मिक मेंटर है पास्टर चांडी वर्गीस, a pastor of a mega church in Delhi. और दिल्ली का एक मेगा चर्च की पासवान है। And so in 2015, he called me once और 2015 में वो मुझे बुलाया, and he said, I went to a pastor's conference और उन्होंने कहा मैं एक पासवान की सभा में गया हूँ, in Mumbai. It was a great blessing. और मुंबई में गया था, वो एक आशीष के कारण रहा। 2016, you should definitely go for the conference. 2016 में उस कॉन्फ्रेंस में आप जरूर जाना है। And as I said, I always obey my spiritual mentors. और जैसे मैंने कहा मैं अपने स्पिरिचुअल मेंटर्स को मानता हूँ। Many people, when they interview me, they ask, what is the reason of the success of your ministry? How come at a young age you became a pastor of a big church? How come revival happened? I always say, obey God, obey men of God whom God has placed in your life. और कई लोग मेरे इंटरव्यू लेने के समय हमसे पूछा है, इतना जवानी उम्र में आपकी सेवकाई इतना तरक्की कैसे किया, इतना बड़ा जागृति की वजह आप कैसे बना? मैंने बोला प्रभु को आदर करो, जो प्रभु का दास जो प्रभु ने हमारे ऊपर में रखा है उनकी अधीन में रहो। Amen. आमीन। So in 2016, I and Pastor Finney Stephen, we reserved our seats and we went for the conference in Bombay. और 2016 में मैं और पासवान फिन्नी स्टीफन मुंबई का उस कॉन्फ्रेंस के लिए गया। 6,000 pastors came for the conference. 6,000 पासवान लोग आए थे उस It कॉन्फ्रेंस was के in a लिए, very big indoor stadium in Mumbai. और इंडोर स्टेडियम में मुंबई में ये सभा हुआ Pastor है। Shekhar Kalyanpur was the organizer of that conference. पास्टर शेखर कल्याणपुर इस मीटिंग की आयोजन किया, And he was giving an introduction message on the glory of God. और वो इंट्रोडक्शन के मैसेज में परमेश्वर की महिमा के बारे में कहा। So he said the glory always manifests on the mountain top. और जो पहाड़ी क्षेत्रों के चोटियों में महिमा अक्सर प्रकट होते The हैं, anointing happens in the valley. लेकिन अभिषेक नीचे जो तराई में होते हैं। In the anointing you see the man of God and the gifts of the Holy Spirit. और अभिषेक में परमेश्वर की दासों को और वरदानों को देखते हैं। But in the glory of God you don't see the man of God, you only see God himself. लेकिन महिमा के क्षेत्र में आप कोई परमेश्वर की दास को नहीं देखते हैं, सिर्फ परमेश्वर को ही देखते So I हैं। was writing notes and listening to the message. और हम लिख रहा था, मैसेज को सुन रहा था। Then the main messages were taken by an apostle from America. His name was Apostle Guillermo Maldonado. और गियर्मो मेल्डोनाडो नाम करके एक प्रभु के दास वहां का मुख्य संदेश दे रहा And था। the moment he starts ministering, there is immense presence and the glory of God. जिस पल से वो परमेश्वर का वचन सुनाने लगा, एक असाधारण अलौकिक परमेश्वर की उपस्थिति मौजूद रहा। Creative miracles were happening. बहुत बड़ी चमत्कारें हुए हैं। Again he spoke on the glory of God. वो उस व्यक्ति भी प्रभु की महिमा के बारे So I में बोला, started writing notes. और हम नोट लिख रहा And था। then I felt in my heart, और मेरे मन में मुझे लगा, if God gave me an opportunity to be prayed over by this man of God, it is going to be a great blessing. और मेरे मन में लगा है ये प्रभु के दास लोग अगर मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, मेरे लिए एक आशीष के कारण होगा। But 6,000 people are there. लेकिन 6,000 लोग हैं वहां। What are the chances that you will get prayed? कैसे एक मौका मिलेगा उनके द्वारा प्रार्थना को प्राप्त करने So के the लिए? next day something amazing happened. लेकिन अगले दिन कुछ असाधारण कार्य On हुआ। the second day of the conference, कॉन्फ्रेंस की दूसरी दिन में 70 pastors among 6,000 people got an SMS saying that you are selected to meet this man of God. और 6,000 पासवानों की झुंड से 70 पासवानों को एसएमएस मिला है, संदेश मिला है, आप लोगों को चुन लिया है इस पास्टर से मुलाकात करने के And लिए। guess what? I got it. Pastor Finney Stephen also got it. और मुझे भी वो मैसेज मिला है, पास्टर फिन्नी स्टीफन को भी मिला। I want to tell you, if God is marked you for carrying revival and glory of God, no matter, even
if you don't recognize it, God will pick it up. प्रियो, आप विश्वास करें, अगर परमेश्वर ने तय किया है आपको जागृति के लिए इस्तेमाल करे और महिमा के लिए इस्तेमाल करे, कोई भी परिस्थिति कुछ भी हो, आप चुन लिया जाएगा। Now the main meeting is happening. 6,000 people are there in that stadium. और उस स्टेडियम में 6,500 लोग मौजूद हैं। But they took 70 of us into a very small room, smaller than this hall. और इस हॉल से भी एक छोटा हॉल में हमें 70 लोगों को लेके गया। No flashing lights. और ऐसे कोई फ्लैश लाइट्स नहीं No है। good sound systems. अच्छा साउंड सिस्टम नहीं No है। keyboard भी नहीं है. कीबोर्ड भी नहीं है। And I was sitting there where this sister was sitting. और जैसे सिस्टर बैठी है उसी जगह में बैठा था। Front seat I got. और आगे की सीट And मिला। Pastor Finney Stephen was sitting next to me. और पास्टर फिनी स्टीफन बगल में बैठा। And this man of God comes and talks for 15 minutes. और 15 मिनट के लिए प्रभु के दास आकर बात करने लगा। Then he says, I'm going to pray for you. और इसके बाद वो कहा मैं प्रार्थना An करने जा रहा हूं। impartation prayer, I'm going to pray for you. और इम्पार्टेशन प्रेयर अभी होगा। I was very excited. और मुझे बहुत खुशी And लगा। he started praying. वो प्रार्थना करने लगा। And he came straight to me. I was sitting there. और जैसे आगे बैठा तो मेरी तरफ इशारा किया। And he looked at me and said, और मेरे तरफ देख करके कहा, Son, if you believe, बेटा अगर तू विश्वास करेंगे this Sunday और इसी रविवार in your church, आपकी कलीसिया the में glory of God will be manifested. परमेश्वर की महिमा प्रकट होगा। Now, you all got excited. जैसे आप सब लोग आनंदित हुए हैं, You know, you all got excited now और आप सब लोग अभी आनंदित हुए हैं because you heard my morning session. क्योंकि आप सुबह की मेरी सत्र को सुना है। I didn't get excited लेकिन उस समय मुझे कोई खुशी नहीं लगा because I didn't know what the glory of God is. क्योंकि मुझे मालूम नहीं था प्रभु की महिमा क्या होता है। You heard my message, that is why you got excited. आप मेरा संदेश सुबह की सत्र में सुना है, इसलिए आपको खुशी लगा है। So I was standing like this. और मैं इसी प्रकार खड़ा था। And then he prophesied about my ministry. और इसके बाद मेरे सेवकाई के बारे में भविष्यवाणी। That made me excited. ओ मुझे बहुत आनंद Oh, I दिलाया। said, I receive it in Jesus' name. और मैंने बोला मैं यीशु के नाम से स्वीकार करता हूँ सारे भविष्यवाणियां। You are all excited for both. Now what should I preach now? आप दोनों के लिए आनंदित हो रहे हैं। Now the conference, the most exciting thing was then he said all these 70 people are going to sit in the first row in the next 2 days. और वो कहा है ये जो 70 लोग चुने हैं अगले 2 दिन आप लोग कॉन्फ्रेंस में आगे बैठेंगे। So that was the most happiest thing for me. और वो मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छा लगा है। Sitting in the front and seeing the miracles. और सामने बैठकर परमेश्वर की चमत्कार देखना। Saturday I went back to Bangalore. Pastor Finney went back to Kerala. शनिवार के दिन मैंने बेंगलुरु की ओर गया, पास्टर फिन्नी स्टीफन केरला की ओर गया। This is happening in 2017. ये 2017 की बात है। I'm ministering in my Bangalore church. मैं अपनी बेंगलुरु की कलीसिया में सेवकाई कर रहा हूं। Our church was very small at that time. उस समय हमारी कलीसिया बहुत छोटी थी। Maybe 100 or 120 people. 70 people only will come on a Sunday. और 100-120 लोग हैं, लेकिन 70 लोग ही रविवार की आराधना में So आते हैं। 70 people are there. और 70 लोग बैठे हैं। And the worship is continuing. I am also worshiping. और आराधना हो रहा था, मैं भी आराधना कर रहा था। I know that I looked at my watch and I have to stop the worship and start preaching. और मैंने घड़ी देखा है, समय आ गया है आराधना बंद करके प्रचार शुरू करने But का। I'm not able to stop the worship लेकिन हम आराधना बंद नहीं कर पा रहे because the presence is amazing. क्योंकि उपस्थिति बहुत जबरदस्त था। Growing up as a pastor's son, और एक पासवान की बेटा होने के my नाते father has always told me, don't have a meeting without preaching the word of God. और मेरा पिताजी अक्सर कहा वचन प्रचार किए बिना कोई सभा ना चलाए। So I know that I have to preach, और मुझे मालूम हो गया प्रचार तो करना है, but I'm not able to stop the worship. लेकिन आराधना बंद नहीं कर पा So रहे। as the worship progressed, जैसे आराधना हो रहा था people started falling on their own. और लोग अपने आप गिरने लगा। I was not touching anyone. हम किसी को नहीं छुआ, People were falling. वे सब गिर रहे And थे। by the time it became 1:30, उस समय 1:30 बज गया then I thought, I am also feeling hungry. Let me stop the service. और मुझे लगा मुझे भी भूख लग रहा है, चलो बंद कर देते हैं। So I stopped the service. और हम आराधना बंद किया। But because of my excitement to know what happened with all these people, because in my church, I've never seen 70 people falling down at once. और मेरे सेवकाई में कलीसिया में 70 लोग एक साथ गिरते हुए मैंने नहीं देखा था। 1 or 2 people will fall when the presence comes. जब प्रभु की उपस्थिति आता था 1-2 लोग गिरते But हैं, how come 70 people fell down? और 70 लोग एक साथ And गिरना कैसे हो there सकता? was a cameraman like this. और एक कैमरामैन भी इसी प्रकार His
name was Thomas. उनका नाम थॉमस था He was from a non-Christian family. और वो विश्वासी नहीं था He was not a Christian also. और वो मसीही नहीं था Somehow somebody named his name as Thomas. और कोई ना कोई उनको थॉमस नाम दिया है So he was the cameraman standing at the back. और कैमरामैन पीछे खड़ा था When he felt falling down, because our camera is an expensive camera, he packed everything and kept, and he also fell down. और जो हमारा कैमरा महंगा था वो सोचा कुछ खराब हो गया इसलिए वो कैमरा जो है पैक करके वो भी गिर गया So now everyone got up, और सब लोग जब जग गया उठ and I गया gave the mic and I'm taking testimonies. और हम माइक दिया है गवाही सुनने के लिए And everyone was saying, I saw vision, I saw Jesus, so like that. So सब लोग गवाही दे रहे थे मैंने दर्शन देखा मैंने यीशु को देखा तरह तरह की I गवाही was slightly tired also. और मैं थोड़ा थका हुआ So भी I था। was on the podium like this. और हम पोडियम में इसी प्रकार खड़ा था And then finally Thomas got the mic. और आखिर में थॉमस को माइक मिला Remember, Thomas is a non-Christian, an idol worshipper. और आप जानना है वो मूर्ति पूजा करने वाला एक विश्वासी नहीं है वो Now Thomas picks up the mic like a drunk man. और जैसे जो है नशा किया हुआ एक व्यक्ति के समान माइक उठाया And he said in English, और इंग्लिश में बोला Pastor, पास्टर I saw the glory of God, and he fell down. और वो परमेश्वर की महिमा देखा है बोलकर गिर गया है When he fell down, जब वो गिर गया I am hearing sound of hailstones. और हेलस्टोन जो आलिपड़म हिंदी ओला ओला को yes. गिरते हुए मैंने देखा है Yes, hailstones. और ओला को गिरते हुए मैंने देखा So I'm hearing. उसकी आवाज मैंने So सुना normally it happens in Bangalore. और अक्सर वो बैंगलोर में होता है So I looked outside of the window. और मैं खिड़की से बाहर देखा There's no rain. कोई बारिश नहीं So I'm wondering what's happening. मैंने सोचा क्या हो रहा So है we are on the 4th floor of an ICICI bank towers. और एक ICICI बैंक टावर की चौथी मंजिल में Then I है। thought owner must be doing some work on the top floor. मैंने सोचा मकान के ऊपर में शायद मालिक कुछ काम करा रहे हैं Suddenly the building started shaking violently. और हमारा वो मकान जोर से हिलते हुए मैंने अनुभव किया Please understand, this is not a vision. आप समझो ये कोई दर्शन नहीं Remember, I was standing like this with my eyes open. और मेरे आंख को खोलते हुए मैं इसी प्रकार खड़ा था There's no prayer happening now. कोई प्रार्थना नहीं हो रहा No worship happening. कोई आराधना नहीं है No keyboard background like this. कोई कीबोर्ड नहीं बजाया जा Because रहा everyone fell down. है सब लोग गिरा हुआ And था everyone is either sitting on the chairs or down. और कुछ लोग नीचे है कुछ लोग कुर्सी में है अभी And so suddenly the building is shaking अभी जो है मकान हिल रहा violently. और बहुत जोर से हिल A रहा है heavy earthquake. और जैसे एक भूकंप जैसे आने के So समय 2 times I have experienced earthquake. और 2 बार मैंने जो भूकंप की अनुभव किया है Many years back when I was working for a software company, कई साल पहले एक सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए जब मैं नौकरी कर रहा I was in a place called as San Francisco in USA. था यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में था मैं So at that time the Bay Area always has earthquakes. और वहां पर हमेशा जो है भूकंप होते So थे we feel it in our body when the earthquake comes. जब भूकंप होता है हम शरीर में महसूस करता था Second was in 2014 or 15 और 2014 में दूसरी अनुभव भी or हुआ 16 if I don't remember correctly. There was a wedding of Pastor Raj, an associate pastor of Pastor Chandy Varghese. On that wedding day there was a huge earthquake in Delhi. I remember we all ran down from that wedding hall. और पास्टर चांडी के साथ में जो सेवा करने वाले प्रभु का दास की शादी के समय दिल्ली में एक जबरदस्त भूकंप हुआ है उस झटका से हम लोग सब भाग गए This earthquake which I am experiencing now लेकिन आप जो भूकंप की अनुभव हम अनुभव कर रहे is greater than that. हैं और वो दोनों से भी So बढ़कर था I was tightly holding on to the podium. और हम पोडियम को बहुत जोर से पकड़ कर खड़ा So the first thing which came into my mind was और पहला सोच मेरे मन में आया death. मर जाएंगे I will die now अभी मैं मर जाऊंगा because I'm on the 4th floor. क्योंकि हम चौथी मंजिल में हैं There's no way that I can escape. और हम कभी भी बच नहीं पाएंगे But even I thought about death. 2 great things what gave me joy. और जैसे हम इस सोच में था लेकिन 2 बात मुझे ज्यादा खुशी दिलाई Number 1, I'm not dying alone. और मुझे मालूम हो गया मैं अकेले नहीं मरने We वाला are all scared to die alone only. हम सब लोग अकेले मरने के लिए डरता 70 people, that too our church people are dying together. और मेरे साथ 70 विश्वासी भी मरने जा So रहे it's like a tour to heaven. और ये स्वर्ग की ओर एक टूर जैसे मुझे लगा है Now some people want to die. कुछ लोग अभी शायद मरना चाहते हैं Only if you die alone then we have a problem. अकेले मरेंगे तभी तो शायद थोड़ा डर है 70 people are there in the church. क्योंकि कलीसिया में 70 लोग बैठे हैं। Everyone will die. सब लोग मर जाएंगे Second, दूसरी बात when I was a child, my mother told me जब मैं
बच्चा था, मेरा माँ अक्सर कहती if है, there is any pastor while preaching, if they die, they get a special seat in heaven. अगर कोई भी पासवान सेवकाई के दौरान में मर जाएंगे, स्वर्ग में उसको विशेष जगह मिलेगा। It is not biblical. ये बाइबल के आधार पर नहीं My है, mother's belief system. और मेरे माँ की ऐसे एक So विश्वास I was holding the mic. था, और हम माइक पकड़ा So हुआ I felt very happy. 100% I will be in heaven only. और मुझे पूरा पक्का हो गया है, क्योंकि मैं माइक पकड़ा हूँ, मैं स्वर्ग में अच्छा जगह पहुंचूंगा। Now while this is happening, जब ये हो रहा था, there was a brother and a sister at the door, और एक भाई बहन दरवाजे के पीछे, like how our brother and sister are sitting there. जैसे हमारा भाई बहन पीछे बैठे उसी प्रकार He was दरवाजे my के church पास, secretary. और वो चर्च की सेक्रेटरी था, He and his wife ran out. और वो उनका पत्नी जो है भाग गए वहां से, Ideally, they should be in the church to save us. और वो चर्च में होना चाहिए हम सबको बचाने के लिए। Now this sister ran out, then came back, took the handbag and again ran. और वो सिस्टर पहले भाग गई थी, बैग भूल गई थी, और फिर वापस आया, वो लेकर भाग गई। So I am seeing all these things. और ये सारे चीज हो And रहा I है, am saying, if at all they wanted to escape, they should have ran without the handbag. और मैंने सोचा अगर उनको बेचना था, बैग छोड़कर भागना चाहिए था। Now this earthquake is increasing. और अब जो भूकंप का जो And झटका I'm बढ़ रहा feeling है, that the building is folding like this. और बिल्डिंग को इसी प्रकार मोड़ते हुए मैंने देखा, So I knew that I am going to die. और मैं जाना शायद मर जाऊंगा। Suddenly, like a bomb blast sound, where Thomas was, our church was 2 by 2 vitrified tiles. One tile came out. It didn't crack. It came out like this. और जहां पर थॉमस बैठा था, वहां से एक जोरदार झटका हुआ, जैसे बॉम्ब ब्लास्ट होता है, वहां से जो टाइल्स जो टूट के नहीं, वो अपने आप जो 2 by 2 का निकल गया है। Now I am seeing that. और मैं देख रहा उसको, Now I am getting a feeling. और अब मुझे यही फीलिंग हो रहा है, There is a heavy man walking from there to the stage. और वहां से एक मजबूत व्यक्ति चलकर मंच की ओर आ And रहा he है, was keeping his leg one by one. वो अपनी पाँव इसी प्रकार रख रहा है, And as he was keeping the legs, वो अपना पाँव रखते हुए I am आगे आ रहा है। seeing the tiles coming out. Top, top, top. Tiles are coming out. टाइल्स इसी प्रकार निकलते हुए आवाज में सुन रहा था, And as he got closer and closer, जैसे वो नजदीक I पहुंचा, started understanding it is Jesus, the King of Glory. मुझे मालूम हो गया ये और कोई नहीं है, यीशु है जो महिमा की राजा है। So I started getting a feeling that I will fall now. और मुझे ऐसा लगा कि शायद अब मैं गिर जाऊं, So I started holding the podium tight like this. और मैं पोडियम ऐसे जोर से पकड़ कर खड़ा हुआ, And this heavy man came over me and walked behind me. और ये जो मजबूत आदमी सामने आया, मुझे पार होकर गया। Next 20 minutes, complete silence in the church. अगले 20 मिनट बिल्कुल सन्नाटा रहा, Nobody is talking anything. कोई बातचीत नहीं कर रहा, Great peace. और एक शांति की A माहौल, special supernatural experience and thought process. और अलौकिक सोच की एक वातावरण। Then we calmed down. और इसके बाद सब लोग शांत हो गए, I was happy that we didn't die. और हम खुश था कोई मरा नहीं है। So I took my mobile and typed earthquake in Bangalore. और मैंने मोबाइल में टाइप किया है बेंगलुरु में भूकंप, No news. कोई न्यूज़ नहीं है, And I'm wondering what happened. और खोजा है कोई न्यूज़ नहीं। मैंने सोचा क्या And हुआ, so suddenly that secretary and the wife ran out. They came with a group of people. और जो सेक्रेटरी उनकी पत्नी जो बाहर गए थे, वो कुछ लोगों को लेकर आए, The security of the building, और बिल्डिंग के सिक्योरिटियों the को, ATM security, एटीएम की the सिक्योरिटी, bank security, बैंक की and सिक्योरिटी, few people. और कुछ लोगों को लेकर आए। Now they all came and they're all looking at the tiles and looking at me. और सारे जो टाइल्स को भी देखा है, मुझे भी देखा है, I am also thinking what happened. और मैंने भी सोचा क्या हुआ है। Suddenly there was a Nepali non-Christian security guard. और नेपाल का एक जो गैर विश्वासी गार्ड था वहां He पर, knows only Hindi. वो सिर्फ हिंदी जानता So था, he looked at me and said, और हमको देखकर कहा, Pastor जी, क्या आपने इधर जादू टोना किया? हालेलुया। So then I started thinking, तब मैंने सोचने लगा, I am thinking in the naturals. हम जो है प्राकृतिक रूप से सोच रहा A है, non-Christian is thinking in the supernatural. लेकिन जो गैर विश्वासी है अलौकिक सोच रखते हैं। Suddenly there was a sister standing next to the stage. और मंच के सामने एक बहन खड़ी थी, She said, Pastor, उन्होंने कहा, पासवान, today morning when I was praying, आज सुबह मैं प्रार्थना कर रही थी, the Lord told me Revelations 11:19 will happen in our church. और प्रकाशित वाक्य 11 का 19 हमारी चर्च में दोहराएंगे। The heavens opened. स्वर्ग खुल जाएंगे, The ark of God came down. परमेश्वर की संदूक There was उतरेंगे, lightning. और बहुत रोशनी There के was साथ, thunder. और एक बिजली There की was a कड़कड़, great earthquake. और बहुत बड़ी भूकंप, And a great hailstones. और बहुत बड़ी ओला की वर्षा के साथ।
The moment she said that, जैसे वो कहा मुझसे, I had a vision. मैंने एक दर्शन देखा. Apostle Maldonado, the man of God who prophesied to me, जो अपोस्टल मल्डोनाडो जो मुझे देखकर भविष्यवाणी किया था, he smiled at me and said, वो मुझसे देखकर मुस्कुराकर कहा, son, बेटा, did I not tell you क्या ये तुमको नहीं बोला था मैं? this Sunday यही रविवार in your church आपकी चर्च the glory of God will be manifest. परमेश्वर की महिमा प्रकट होगा. Come on, speak in tongues, please. अन्य भाषा बोलकर प्रभु Speak in को tongues and धन्यवाद. receive the power of the Almighty God. पवित्र आत्मा की Let there be a revelation of the manifestation of the glory of God. महिमा की प्रकटीकरण In your ministry, let the glory of God manifest. आपकी सेवकाई में प्रभु की महिमा प्रकट होगा. In your churches, let the glory of God manifest. आपकी कलीसिया में महिमा प्रकट होगा. More. ज्यादा महिमा. छुड़ाला बा शतारा बा छुड़ाला बा शबातानिया छुड़ाला बा उठीनी तेरिया Rime me sebu rababababura banamama la bausha gele. When God is allowing us to experience this, just enjoy it. परमेश्वर आपको अनुमति दे रहे उनकी उपस्थिति को महसूस करने के लिए आनंद उठाए इसका. Just enjoy it. इसकी आनंद उठाए. Because we don't know what to do when the presence gets manifested. क्योंकि उपस्थिति प्रकट होता है, क्या करना है हमें नहीं मालूम है. So the best thing is to enjoy the presence. और सबसे बेहतर कार्य यही है उनकी उपस्थिति को Feel आनंद free उठाए. to do whatever you want when the presence is there. और प्रभु की उपस्थिति में जो कुछ करने के लिए आपको अगुवाई हो रहा है वो करे आप. And the best thing is to say thanks. और सबसे अच्छा चीज यही है कि प्रभु को धन्यवाद कहे. Ebenezer. Enjoy. This is why we have come for the school of the Holy Spirit. हम स्कूल ऑफ होली स्पिरिट में इसलिए आए हैं प्रभु की उपस्थिति की आनंद उठाएं. This is not a Sunday service. एक रविवार की एक आराधना नहीं है ये. This is not a healing and deliverance crusade. और एक चंगाई की छुटकारा की सभा नहीं है ये. We are learning to tap into the glory of God. परमेश्वर की महिमा को अपनी ओर खींचने के लिए हम सीख रहा है. So feel free, take full freedom and do what the Holy Spirit is leading you. यहाँ पर आपको पूरा आजादी है. पवित्र आत्मा जिस प्रकार आपको अगुवाई करते आप खुल कर पाएंगे. यहाँ पर நானும் என் வீடும் என் வீட்டார் அனைவரும் ஓயாமல் நன்றி சொல்லும். Just say thanks. நானும் धन्यवाद என் வீடும் என் வீட்டார் அனைவரும் ஓயாமல் நன்றி சொல்லும். ஒரு கரு போல காத்தீரே நன்றி, என்னை சிதையாமல் சுமந்தீரே நன்றி. ஒரு கரு போல் காத்தீரே நன்றி, என்னை சிதையாமல் சுமந்தீரே நன்றி. हाथों को उठाकर When this happened in our church, this was the atmosphere. जब एक घटना हमारी कलीसिया में हुआ, इसे एक माहौल था. We didn't know what to do. हम नहीं जानते थे हम क्या करें.
We were crying, falling on the floor and saying, thank you, thank you, thank you. हम जमीन में लेटकर प्रभु की तरफ देख कर के कह रहे थे, रो रहे थे, प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। When the presence manifests, that's what I do even today. जब प्रभु की उपस्थिति प्रकट होता है, आज भी मैं वही करता हूँ। Sit down and say thank you. बैठकर कहते हैं, प्रभु धन्यवाद। ഒരു കർപോലെ കാത്തീരേ നന്ദി धन्यवाद। നിസിതയാമൽ സുമന്ദിരേ നന്ദി ഒരു കൽപ്പോ കാത്തീരേ നന്ദി We love you, Jesus. प्रभु आपको हम प्यार करते You हैं। are awesome in this place. प्रभु आप यहाँ पर महान हैं। എബനേസരേ എബനേസരേ നേരാ സുമന്ദവരേ എബനേസരേ എബനേസരേ നേരാ Amen. So the big question is, how do you know that this was the glory of God? सबसे बड़ी सवाल यही है, ये परमेश्वर का महिमा है करके कैसे आप पहचानेंगे? When this was happening, जब ये घटना हो रहा था, there was a 1.5-year-old boy holding on to my leg. और 1.5 साल की एक बच्चा मेरे पाँव में पकड़ा था। He was born with a shorter spinal cord. और स्पाइनल कॉर्ड में कुछ तकलीफ था जब उनकी जन्म हुआ। His parents were traditional Christians. और वो परंपरागत मसीह थे उनकी माता पिता लोग। And so because he didn't have the backbone and the spinal cord, और स्पाइनल कॉर्ड में रीढ़ की हड्डी नहीं होने के कारण, though he's 1.5, he cannot stand or walk. और 1.5 साल की उम्र भले था, लेकिन वो अपने आप खड़ा नहीं हो पाता था। He has so many, metal pieces on his body. और कई प्रकार की लोहा उनके शरीर में लगा हुआ था। If you take him in his hand, he will not stand straight, he will fall. So you have to hold him with 2 hands. और वो एक हाथ ऐसे खड़ा नहीं कर पाता था, वो गिर जाता था, उनको रोकना पड़ता था दोनों हाथ से। So because he was uncomfortable in the church, I used to allow him to crawl in the church. He cannot walk, he only crawls. और वो चल नहीं पाता था, वो गुलटता था, क्योंकि वो तबीयत ठीक नहीं होने के कारण उनको हम अनुमति दिया इसी प्रकार चलने के लिए। When the glory descended, लेकिन महिमा जब उतरा, when I looked down, जब मैंने उनकी तरफ देखा, this boy who never stood up in his life अपने आप कभी जो नहीं खड़ा हो पाया वो was लड़का, standing up on his own. मैंने देखा वो अपने आप पे खड़े होते हुए। No one prayed for him. कोई उनके लिए प्रार्थना नहीं किया, No one laid hands. कोई उनके सिर के ऊपर हाथ But नहीं when the रखा। glory is manifested, imperfection goes out, perfection comes in. जब महिमा उतर जाता है, वहां पर सिद्धता प्रकट हो जाते हैं, कमजोरियां दूर चले जाते हैं। Come on, if you believe it, speak in tongues for 30 seconds. विश्वास करने वाले लोग अन्य अन्य भाषा बोले थोड़ी समय के लिए। शबाबा बाबा रे लिखोरियम थेरिया लबाशियम थेरे शठला मुंह खोलकर शबादना गदगदना लोरियम थेरिया लबशकमाना धीरबा। Amen. आमेन। Today he is 11 years. आज वो 11 साल हो गया है। He is training himself to be a professional swimmer. वो अपने आप को एक प्रोफेशनल स्विमर बनाने के लिए तैयारी में है। For swimming you need a very strong backbone. और तैरने के लिए उनको मजबूत रीढ़ की हड्डी होना चाहिए। He does not have any metal pieces on his body now. अभी उनके कोई शरीर में कोई लोहा की कोई चीज नहीं लगा हुआ है। What happened to his parents who were, traditional Christians? उनके माता पिता को क्या हुआ जो एक परंपरागत विश्वासी लोग थे? They are pastors of my church now. वे लोग आज हमारे कलीसिया की पासवान बन गए हैं। That's what the glory can do. वही जो है महिमा कर सकते हैं। ഒരു കറുപോലെ കാത്തീരേ നന്ദി എന്നെ സിതയാമൽ സുമന്തിരേ धन्यवाद। ഒരു കറുപ്പോ കാത്തീരേ നന്ദി എന്നെ സിതയാമൽ. സിദയാ സുമന്തിര. Number 3,
तीसरी बात, there was a young girl who fell down. और एक जवान लड़की थी, वो गिर गई थी। She heard a voice. वो एक आवाज सुने, Africa is calling. और अफ्रीका बुला रहा। And then the Holy Spirit told her, और इसके बाद पवित्र आत्मा उनसे कहा, I will send you as a missionary to Africa. और आपको अफ्रीका में मिशनरी के तौर पर But भेजेंगे। before you go to Africa, और अफ्रीका जाने के पहले I will send your pastor to Africa. आपकी पासवान को हम पहले अफ्रीका भेजेंगे। Glory opens door for international ministries. और महिमा अंतरराष्ट्रीय सेवकाई के लिए द्वार खोलता In है। the name of Jesus, receive it. In यीशु के नाम से स्वीकार करें। the name of Jesus, receive it. In यीशु के नाम से स्वीकार the name करें। of Jesus, receive it. यीशु के नाम से स्वीकार Elements करें। of glory will open doors of ministry. महिमा आपके लिए सेवकाई की द्वार खोलते Yes, हैं। yes, take it, take it, take it. स्वीकार करें, स्वीकार करें ये Take it, the भविष्यवाणी। revelation of God's glory. और ये महिमा की संदेश स्वीकार करें। छुड़ा बारा सदा। Amen. Amen. That opened the door for me, Pastor Finney Stephen, Pastor Chandi Varghese, to go and minister in Africa. और वो भविष्यवाणी ने एक द्वार खोला मुझे, पास्टर फिनी स्टीफन, पास्टर चांडी वर्गीस को अफ्रीका देश में जाकर के सेवकाई करने के लिए। Even today we have a blessed ministry there. आज भी हमारे लिए एक आशीषित सेवकाई अफ्रीका की देश में है। Next month, अगले महीना myself and Finney Pastor, we are again in Africa. और हम और फिनी पास्टर हम अफ्रीका देश जाने वाले हैं सेवकाई के लिए। It is not your preaching ability which will open doors. और आपकी प्रचार करने की तरीका नहीं है जो द्वार खोलता है। The glory of God will open doors. महिमा जो प्रभु का है वो द्वार खोलते हैं सेवकाई का। What happened to Thomas? थॉमस को क्या हुआ था? A non-Christian cameraman. और वो गैर विश्वासी था, कैमरामैन था। Today he is a pastor in the city of Bangalore. वो आज बेंगलुरु में एक पासवान बनकर सेवा कर रहे हैं। The glory transformed our church और वो महिमा हमारा कलीसिया को रूपांतर किया। from a normal church. एक साधारण कलीसिया से People started saying, लोग कहने लगा आज if you go to Pastor Anisha's church, the presence of God is there. आप पास्टर अनीश के चर्च में जाएंगे, प्रभु की उपस्थिति को आप महसूस कर पाएंगे। Even today the church is growing not because of my preachings. और आज भी कलीसिया मेरे प्रचार के वजह से नहीं बढ़ रहा है, It is only because of His presence. और केवल उनकी उपस्थिति की वजह से बढ़ रहा है। When you go back after this school, आप ये स्कूल के बाद जब वापस जाएंगे, I am praying that all of you will be glory carriers. आप सब लोग महिमा को ढोने वाला बन जाएंगे प्रभु का। All of you will be glory carriers. आप सब लोग महिमा को लेकर चलने वाला बन जाएंगे। The very thing that you be there will change the atmosphere. और जहां पर आप पहुंचेंगे वहां की वातावरण आपके द्वारा बदल दिया जाएगा। Ebenezer, अब तक संभाला मुझे, तूने मुझे बचाया है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आबा पिता तेरा धन्यवाद, हो धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आबा पिता तेरा धन्यवाद। महिमा से जान से ज्यादा भर दे। महिमा से, महत्व से, नाम से ज्यादा भर दे। महिमा से, desire. महत्व से, और आप जाना नाम से ज्यादा भर दे। महिमा से, महत्व से, नाम से ज्यादा भर दे। वो घुटनों
मधुर सा तू, जीवन का जल है तू, मीठा मधुर से तू, भाग्य रू तू, भाग्य रू तू, मीठा मधुर से तू, मीठा मधुर से तू, जीवन का जल है तू, मीठा मधुर से तू, होसेना, 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 It changed my personal ministry. ये मेरा व्यक्तिगत सेवकाई का गति बदल दिया। There is a wonderful church in Bangalore called as the Bethel AG Church. बेथेल एजी चर्च के नाम से एक आशीषित कलीसिया बैंगलोर में है। They normally don't give opportunity to any pastors in Bangalore to preach. और बैंगलोर की कोई पासवानों को अवसर नहीं देते उस कलीसिया में सेवा करने के। But when they heard about the glory manifesting in our small church, हमारा छोटा कलीसिया में महिमा प्रकट होने की खबर जब उनको पता the चला, senior pastor of the church, Pastor M.A. Varghese, said, call that little boy, ask him to minister in our church. और पास्टर में वर्गीस पासवान ने कहा वो बच्चे को बुला करके हमारी कलीसिया में प्रचार करने के लिए कहा। Don't do anything to promote your ministry. आप आपकी सेवकाई को प्रमोट करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। You carry the glory of God. आप महिमा को लेकर चले, God will promote it. और परमेश्वर आपको आगे बढ़ाते रहेंगे। This happened in 2016 November. और 2016 की नवंबर महीना में हुआ था। Last 9 years, और पिछले 9 साल से my personal ministry has been very different. और मेरा व्यक्तिगत सेवकाई बिल्कुल अलग ही रहा। God started using me for blessing to many hundreds and thousands of people. और सैकड़ों हजारों लोगों के लिए आशीष का जरिया बनने के लिए प्रभु ने मेरी सेवकाई को इस्तेमाल कर रहे हैं। God opened doors in nations. और कई देशों के लिए प्रभु ने द्वार खोला है। Just for the glory of God, I am saying, और प्रभु का महिमा के लिए मैं कह रहा हूँ, in this age, God has enabled me to minister in 29 nations for the glory of God. और प्रभु की महिमा के लिए 29 देशों में जाकर सेवकाई करने के लिए प्रभु ने इस उम्र में प्रभु ने मदद किया है। Not because of my preaching. और मेरे प्रचार की वजह से नहीं। All the Lord has asked me, son, carry my glory. प्रभु मुझे एक ही बात कहा, बेटा तू मेरा महिमा ढोक करके। That's what every day I pray, Lord, help me to manifest your glory. और प्रतिदिन मेरी प्रार्थना ही है, प्रभु तेरी महिमा को प्रकट करने के लिए मुझे मदद करे। When I am ministering here, जब मैं यहाँ सेवकाई कर रहा हूँ, I'm not thinking what you will think about my ministry. और मैं इसकी चिंता में नहीं हूँ आप मेरी सेवकाई के बारे में क्या सोचेंगे। I'm not thinking whether pastor will say or Pastor Rohit will say good ministry. No. और हम ये सुनने के लिए नहीं चाहेंगे कि पास्टर रोहित और पासवान बोलेंगे अच्छी सेवकाई है। All I am praying, Lord, we want to see your glory here. हम एक ही प्रार्थना में अभी भी खड़े हैं, प्रभु मुझे आपकी महिमा यहाँ पर एक बार और देखना है। If your glory is not manifesting, then we are not happy, Lord. और प्रभु आपकी महिमा प्रकट नहीं होते तो हम खुश नहीं है प्रभु। That's why in the morning I was very happy. और इसलिए सुबह की सत्र में बहुत खुश था Because I saw Jesus physically standing and touching me. और मैंने देखा यीशु मसीह खुद आकर कई लोगों को छूते हुए। When I see that I am full of joy. जब वो देखता हूँ मैं आनंद से भर जाता हूँ। Sing that once again. Paakaru. पाकरू 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 The Holy Spirit is taking us higher into the realm of God's glory. और पवित्र आत्मा हमें वो महिमा की क्षेत्र की ओर ले जा रहे हैं। जीवन का जल है तू, मीठा मधुर से तू, होसेना होसेना होसेना
testimony went all the way to America. और ये जो गवाही घटनाएं अमेरिका तक पहुंच गए। Apostle Maldonado heard about this testimony. अपोस्टल मल्डोनाडो ये गवाही सुना है। When I went to USA, he asked me to come to his studio. और जब मैं यूएस से गया है, उन्होंने अपनी स्टूडियो में मुझे आने के लिए न्योता He said, I दिया want to record this testimony. और हम इस गवाही को रिकॉर्ड करना चाहते They recorded the testimony. हैं और ये गवाही को रिकॉर्ड किया है। And for the first time, पहली बार God enabled me to minister in God TV, touching nations for His glory. गॉड टीवी में एक मौका दिया है बहुत सारे लोगों को छूने की एक सेवकाई करने के लिए। Don't do anything to stretch your ministry. आपकी सेवा को बढ़ाने के लिए अपने आप कुछ ना करें। Allow the glory of God to extend your ministry. महिमा आपके जीवन से बहने दे, वो अपने आप आगे बढ़ते जाएंगे। From that day, I started preaching on the glory of God. और उसी दिन से प्रभु का महिमा के लिए मैं प्रचार कर रहा I don't think that there is any week where I haven't preached on the glory of God. हूं और मुझे याद नहीं है कि ऐसा कोई हफ्ता हो जहां पर हम प्रभु का महिमा के बारे में प्रचार नहीं किया। Kept on preaching the glory of God. महिमा के बारे में प्रचार करते रहा Started attending glory conferences. और महिमा से जुड़े हुए कॉन्फ्रेंस में जुड़ते रहा। So one of the conference in America और अमेरिका की एक कॉन्फ्रेंस में is called as Summer Glory Conference. समर ग्लोरी कॉन्फ्रेंस का नाम है उसका। I was attending that in 2023. और 2023 में हम वहां पर भाग ले रहा था। It is hosted by a pastor called as Pastor John Kilpatrick. और जॉन किलपैट्रिक नाम करके एक पासवान ने आयोजन किया तो He was the host pastor when Pensacola revival happened in US. और यूएस का पेंसिकोला में जागृति हुआ है, वहां का कलीसिया को संभालने वाला था ये पासवान। 4 million people were saved in that revival. 4 मिलियन लोग उस बेदारी के द्वारा आशीषित हुआ है। So in that conference, I and Chandi Pastor got an opportunity to meet him. और मुझे और चांडी पास्टर को अवसर मिला पासवान से मिलने के लिए। He prayed for me. वो मेरे लिए प्रार्थना किया, He hugged me वो गले लगाया, and he gave me a kiss. वो मुझे एक चुम्मा दिया। He's now close to 80 years. वो अभी 80 साल की उम्र के हैं। And he gave me a book, वो मुझे एक किताब भी दिया, Revival. जागृति। Inside that he wrote, और उसमें ये लिखा था वो, Revival is a bright light shining out of God's heart. और परमेश्वर के हृदय से निकलने वाले एक ज्योति है बेदारी। And he wrote in the next line, अगले लाइन में लिखा है, Revival for India. अभी बेदारी भारत के लिए And he है। signed John Kilpatrick. जॉन किलपैट्रिक के नाम से साइन किया I treasured that. और I treasured that book so much. और वो किताब को हम अच्छा से संभाला है। I kept in my office. मेरे ऑफिस में मैंने रखा Every day I will see that. और प्रतिदिन मैं उसको I will tell देखता the Lord, Lord, और मैं प्रभु से कहता, प्रभु this man of God was used for 2 major revivals. ये 2 बेदारी के लिए इस प्रभु का दास को तूने इस्तेमाल We किया know what he says, it will happen. और हमें मालूम है जो कहा है वो बिल्कुल पूरा भी होगा। April 18th, 2024, अप्रैल 18 तारीख 2024 में in our church in Bangalore, हमारे कलीसिया बेंगलुरु a में massive revival broke out. और एक बहुत बड़ी बेदारी की शुरुआत हुआ है। 75 days, 75 दिन non-stop. और बिना रुके, Keyboards were not off, और कीबोर्ड ऑफ नहीं किया sound system not off, और साउंड सिस्टम बंद नहीं किया YouTube live not off. और YouTube की लाइव बंद नहीं हुआ People are not going home. और लोग कलीसिया से घर भी नहीं जा रहे। 75 days. 75 दिन तक Nobody wants to eat food. और किसी को खाना खाने का मन नहीं Nobody wants to eat, go to sleep. और किसी को सोने के लिए नहीं जाना है, Nobody wants to go to office. कोई ऑफिस नहीं जाना चाहते हैं। Prophet Tijo Thomas prophesied, this is an encounter with the glory of God. और पास्टर टिजो थॉमस ने भविष्यवाणी किया, ये महिमा के साथ एक मुठभेड़ है। Close to 3 million people were touched in our revival. करीब 30 लाख लोग इसके द्वारा आशीषित पाया है। 3 million people. 3 मिलियन लोग, That's 30 lakh people. 30 लाख लोग आशीषित हुआ है। You don't need big stadiums to bring revival. आपको बहुत बड़ी स्टेडियम की जरूरत नहीं होता है बेदारी लाने के लिए, All you need is the glory of God. आपको सिर्फ महिमा चाहिए। For that to happen, और वो
वो जो सेवा होने के लिए God had to prepare our church 8 years back. 8 साल से परमेश्वर को हमारा कलीसिया को तैयार करना होता। Many people who did not know us thought suddenly something happened in the church. और कुछ लोग सोचा अचानक कुछ हुआ है कलीसिया में। 8 years we are on our knees, 8 साल से हम घुटने के बल पर थे, praying and desiring for the glory of God. प्रार्थना कर रहे थे, चाह रहे थे प्रभु की वो महिमा उतरने के लिए। And one day it manifested. एक दिन वो प्रकट हुआ है। When it manifested, it touched nations. जब वो प्रकट हुआ है वो कई देशों को भी छुआ है। पाकरू तू। And the Lord told me, this is the Holy Spirit revival. और प्रभु ने मुझे कहा है यही है पवित्र आत्मा की बदारी। Hundreds and thousands and lakhs of people were filled with the Holy Spirit. सैकड़ों हजारों लाखों लोग पवित्र आत्मा से भर जाने की अनुभव। जीवन का जल है तू। This morning when I came to the airport, आज सुबह जब मैं एयरपोर्ट में आया, Suraj was telling me, सूरज मुझसे कहा, Pastor, we were not able to sit simply in Delhi. और हम दिल्ली में ऐसे नहीं बैठ पा रहे थे, We were continuously watching the live. और हम जो है लाइव देख रहे थे We उससे were crying in the presence. हम लोग प्रभु की उपस्थिति में रो रहे थे, They are not understanding the language. और उनको भाषा नहीं मालूम था। But it is not about the language. यहाँ पर भाषा कोई मानी नहीं रखते, It is not about the preaching. और प्रचार कोई मानी नहीं It is रखते, about the glory of God manifesting. और महिमा प्रकट होने की अनुभव है ये। That is why I am preaching in this school of Holy Spirit. इसलिए पवित्र आत्मा की स्कूल में मैं प्रचार कर, Don't get stuck with the realm of anointing. अभिषेक का स्तर तक सीमित ना रहे। Come up. उससे भी ऊपर जाओ, Come up. और ऊपर Come जाओ, up into the realm of glory. और महिमा की क्षेत्र तक जाओ। Come on, speak in tongues for 30 seconds. अगले 30 सेकंड अन्य भाषा बोले मुंह खोलकर। शाथालामारा धुलारगथोरिया शकड़गदरजनादने ले शठलबसगनादने। Desire the glory of God. महिमा को चाहे, महिमा को चाहे और चाहे। रावाला खतुली में शठुलो रसनादने। तू आजा अपनी सामर्थ से हमें भर दे, अपनी महिमा से खुदा। तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे, हमें भर दे महिमा से। अपनी महिमा से खुदा। तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे अपनी महिमा से खुदा। तू आजा। Some of you are boundless glory carriers. आप महिमा को ढोने वाले बन जाओ। अपनी महिमा से खुदा। तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे अपनी महिमा से खुदा। तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे अपनी महिमा से खुदा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ हालेलुया हालेलुया। The Lord is showing me a name Sandeep. संदीप एक संदीप। नाम प्रभु मुझे दिखा रहे। संदीप, Anyone connected with that name संदीप से जुड़े हुए कोई है? or संदीप, anyone with that name, just lift up your hand. अगर कोई है संदीप नाम से, उस नाम से जुड़े हुए कोई है तो हाथ उठाए। Stand up, stand up.
कौन? Yes. Who is Sandeep? Is he part of the church? Yeah, is he part of the church that she's attending? आप जिस कलीसिया में है उधर जाते हैं आप भाई भी? He's not coming to the church. But can you believe this night क्या विश्वास कर सकती है आज रात में that he can be a glory carrier in the coming days? आने वाला दिन में वो महिमा को ढोने वाला बनेगा. Nobody thought when Moses was born that he will be a glory carrier. मूसा की जन्म जब हुआ है वो महिमा को लेकर चलने वाला बनेगा, कोई नहीं सोचा था. Everyone thought it is going to be Aaron. Everyone thought Aharon agum na vicharichalla. वो सोचा था अहरोन बन जाएंगे महिमा ले जाना But वाला. something is happening right now in your family. आपके परिवार में इस समय कुछ हो रहा है. Lift up both your hands, please. आप दोनों हाथों को उठाए. God is going to give you a sign right now. अभी परमेश्वर आपको एक चिन्ह देगा A feather-like touch on your life. और एक आपका जिंदगी को छू रहा है A feather-like touch. और एक फेदर जैसे एक स्पर्श A beautiful touch of love. और एक प्यार की छूने की अनुभव It's happening right now in your life, dear आपकी sister. जीवन में हो रहा है बहन. Receive it. स्वीकार करें, Receive it. आप स्वीकार करें, Receive it. स्वीकार करें, Receive it. स्वीकार करें, Receive it. आप स्वीकार Keep करें. desiring and praying आप और चाहिए और प्रार्थना that I want करें, to be a glory carrier. प्रभु मुझे आपकी महिमा ढोना है. A feather-like touch onto your life. आपकी जिंदगी में एक ऐसा स्पर्श Every discouragement is leaving you. आपके अंदर से सारे निराश की बातें हट रहा है. Every emotional pain is leaving you now. आपकी अंदर की जो भावनात्मक दर्द हट रहा I है. can see the beauty of Jesus coming onto you. आपके ऊपर में प्रभु की सुंदरता उतरते हुए मैं देख पा रहा Everything हूँ. which is stored here, not telling everyone, Jesus is taking your burdens away. आपके अंदर में जो बोझ है प्रभु उठा रहा है इसी समय. अपनी सामर्थ में हमें भर दे, अपनी महिमा से खुदा तू आजा. अपनी सामर्थ में हमें भर दे, अपनी महिमा से खुदा तू आजा. तू आजा. अपनी सामर्थ में हमें भर दे, अपनी महिमा से खुदा तू आजा. अपनी सामर्थ में हमें भर दे, अपनी महिमा से खुदा. The Holy Spirit is healing many of your emotions right now. कई लोगों की भावनाओं को पवित्र आत्मा चंगा कर रहे इसी समय. He is taking away all the brokenness from your life. टूटा हुआ अनुभव को परमेश्वर दूर कर रहे हैं आज रात में. He is making you a vessel of His glory. और वो आपको महिमा की पात्र बना रहा है आज रात में. You are beautiful. आप बहुत ही सुंदर हैं. You are beautiful because you have been transformed into His image. क्योंकि आप इसलिए सुंदर है, आप उनके रूप में बदल दिया गया है. हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना. महिमा से तेरी, महिमा से तेरी भर दे प्रभु. इस जगह को भर. ओ
Lord. तू This is your place. कर Oh, तेरी हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना महिमा से तेरी, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर जो भी तू चाहे। जो भी तू चाहे तू मिलकर हाथों को उठा कर गाइए हालेलुया। Hallelujah. You are a glory carrier. You are moving into a season of carrying His glory. That night I called Pastor Finney Stephen. उसी रात में पास्टर फिन्नी स्टीफन को मैंने बुलाया। I asked him, Pastor, what is happening in my church? मैंने पूछा, पास्टर मेरे चर्च में क्या हो रहा है? I grew up as a pastor's son. हम एक पासवान की बेटा के रूप में आगे बढ़ गए I have never heard anywhere any man of God sharing these kinds of things. और इसी प्रकार की अनुभव किसी पासवान के द्वारा मैं कभी नहीं सुना। Pastor Finney Stephen prayed and told me, पास्टर फिन्नी स्टीफन प्रार्थना करके मुझसे कहा, Acts 4:31 has happened in your church. प्रेरितों की पुस्तक 4 अध्याय की 31वीं घटना आपकी चर्च में दोहराया है। They were all praying together. जब वे सब लोग प्रार्थना कर रहे थे, Suddenly the place where they were praying was shaken. जहां पर वो प्रार्थना कर रहा तो जगह हिल गया है। Then they were filled with the Holy सब Spirit. ऐसा पवित्र आत्मा से भर गए हैं। And they spoke the word of God with boldness. इसके बाद प्रभु का वचन हियाव से प्रचार करने लगे। So I flipped the Bible और बाइबल मैंने खोला है and checked what happened in chapter 5. और 5वीं अध्याय में क्या हुआ ये मैंने देखा। Till chapter 4 things are normal. और 4th अध्याय तक बातें सामान्य हो रही थी Healings, miracles and all are happening. और चिन्ह और चमत्कार हो रहे थे। But you know what happened in 5? लेकिन 5वां अध्याय में क्या हुआ आपको मालूम? Ananias and Sapphira fall dead. अनन्या और सफीरा की मृत्यु हुआ। You know why? क्यों हुआ है मालूम? They spoke lies in the realm of glory. महिमा की क्षेत्र में झूठ बोलने के परिणाम है। How many people speak lies and take part in our communion? और कितने लोग झूठ बोलकर प्रभु भोज में शामिल होते हैं? Nobody is dying. कोई नहीं मरते हैं। You know why? क्यों नहीं मरते? Our churches are stuck in the realm of anointing. क्योंकि हमारी कलीसिया अभिषेक की क्षेत्र में सीमित है आज। In the realm of glory, महिमा की जो क्षेत्र है the word of that atmosphere और वचन की जो वातावरण है is holy. और वो पवित्र है, Holy. पवित्र है, Holy. पवित्र है। तू पवित्र पवित्र है तू सच्चा है प्रभु The realm is holy. वो जो वातावरण पवित्र है। And in the same chapter, यही अध्याय में first time, पहली बार you see the shadow of Peter healing. और पतरस की परछाई के द्वारा चंगाई हो रहा है। The anointing realm shifted into the realm of glory. अभिषेक की क्षेत्र से महिमा की क्षेत्र की ओर परिवर्तित किया गया। Indian church is on a verge point of shifting from the realm of anointing to the realm of glory. That is why God has brought you to the school of Holy Spirit. भारत की कलीसिया इस एक मोड़ पर खड़ा है। अभिषेक की क्षेत्र से महिमा की क्षेत्र की ओर जाएंगे, इसलिए प्रभु आपको यहां पर लेकर आया है। Psalm 72:19 I spoke in the morning. सुबह की 17 में भजन संगीता 72 की 19वीं आयत के बारे में मैंने कहा About the David's prayer. दाऊद की प्रार्थना। You know how we pray?
हम लोग कैसे प्रार्थना करते हैं? Lord, bless my ministry. प्रभु मेरी सेवा को आशीषित करे Give me souls. और मुझे आत्माएं दे। Give me finances. प्रभु मुझे आर्थिक आशीष दे। Give me a good house. अच्छा घर मुझे दे। Give me a good car. अच्छा गाड़ी मुझे दे। That is in the anointing realm. वो अभिषेक का क्षेत्र है। In the glory realm, you won't pray like that. लेकिन महिमा की क्षेत्र में आप ऐसा प्रार्थना नहीं करेंगे, Because in the realm of glory, क्योंकि महिमा की उस क्षेत्र में you will pray, may the whole state of Madhya Pradesh be filled with the knowledge of the glory of God. महिमा की क्षेत्र में खड़े होकर आप यही प्रार्थना करेंगे, पूरा मध्य प्रदेश परमेश्वर का महिमा से परिपूर्ण हो जाए। I prayed this prayer for 8 years. 8 साल से मैंने यही प्रार्थना किया। Everyone told us in Electronic City, Bangalore South, mega churches will not come. सब लोगों ने कहा बेंगलुरु की इलेक्ट्रॉनिक सिटी में बड़ा कलीसिया कभी नहीं बन पाएंगे। With money we cannot do it. पैसा से संभव नहीं है, With glory everything is possible. लेकिन महिमा से सब कुछ संभव है। What cannot be done in the anointing जो अभिषेक से नहीं कर पाएंगे, can be done in the glory. वो महिमा के द्वारा आप कर पाएंगे। That is why Jesus told Martha, Martha, if you believe, I will manifest my glory here. इसलिए यीशु ने बोला, मार्था अगर तू विश्वास करेंगे मैं तुम प्रभु की महिमा को देखेंगे। So David prayed for the glory of God. दाऊद ने परमेश्वर की महिमा के लिए प्रार्थना किया। Come with me to Exodus मेरे साथ निर्गमन की पुस्तक की ओर आए। chapter 33, 33वीं अध्याय verse number 18. 18वीं आयत। Moses is desiring the glory of God. और मूसा ने परमेश्वर की उस तेज को देखना चाहते हैं। Moses is saying, show me your glory. और मूसा ने कहा मुझे अपना तेज दिखा दे। This is a realm of glory. और ये महिमा की क्षेत्र है। David prayed, write it down. David prayed. आप लिखना है, दाऊद ने प्रार्थना किया Moses desired. और मूसा ने चाहा। Who is this Moses? मूसा कौन है? A man who saw the greatest signs, wonders and miracles that God can do. और परमेश्वर के द्वारा होने वाली चमत्कार और चिन्हों को बड़ी मात्रा में देखा हुआ एक भक्त He है। is the pastor of the largest church in the whole world. और पूरा दुनिया भर की सबसे बड़ी कलीसिया की पासवान रहा वो। 4 million people, 40 lakh people. और 40 लाख लोग उस He कलीसिया saw में। the Red Sea departing. उन्होंने लाल समुद्र को विभाजित He होते saw हुए देखा, manna from heaven. मन्ना उतरते हुए देखा, Water from rock. और पानी चट्टान से निकलते हुए देखा, All great signs he saw. और बहुत बड़ी चिन्ह और चमत्कार देखा। If I was Moses, अगर मैं मूसा होता I would have sat on a very special chair और हम एक विशेष कुर्सी में बैठ जाता and with my legs like this, और मेरे पाँव इसी प्रकार उठाकर and I रखता, will say I'm the greatest pastor in India और वो बोलते हैं मैं भारत की बड़ी कलीसिया की पासवान because हूं, I saw the greatest miracles. क्योंकि हम बड़ी चमत्कार को देखा। But this man says, लेकिन ये व्यक्ति कह रहा है, show me your glory. तो अभी भी मुझे तेरा तेज को प्रकट कर। I would ask Moses, Moses, और मैं पूछा, मूसा right from your calling you are seeing the glory only. आपकी बुलाहट से ही आप महिमा देख रहे On हैं, Mount Sinai you saw the glory. और सिनाई पहाड़ में महिमा At देख the Red Sea the glory came in the form of pillar of cloud. और लाल समुद्र में जो है बादल की खंबा बनकर उतरा All है। these years the glory manifested as pillar of fire and pillar of cloud. और आग की खंबा और उसी प्रकार प्रभु की महिमा को देखा है। God told Moses, Moses, I'll send an angel with you. और प्रभु कहेंगे एक स्वर्गदूत को भेजेंगे, Oh, I would have taken a Mercedes Benz car, put the angel and gone. और हम उस कार में स्वर्गदूत को लेकर के चले जाते। But Moses said, I don't want the angel. और मूसा बोला मुझे स्वर्गदूत नहीं चाहिए। God said, I will give you my presence. और प्रभु कहा मुझे तुझे मेरी उपस्थिति देंगे। Presence is in the anointing realm. और उपस्थिति जो है अभिषेक की स्तर है। Moses said, I am not satisfied. और मूसा कहा मैं अभी भी जो है तृप्त नहीं हूँ, Show me your glory. और तेरी महिमा प्रकट करे। If we pastors and servants of God हम पासवान और प्रभु के दास लोग can start desiring to see the glory of God, परमेश्वर की उस महिमा को देखने की एक चाहत रखेंगे तो India will be transformed by the power of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भारत बदल जाएगा। When you leave this conference, जब ये कॉन्फ्रेंस के बाद जब आप जाएंगे, don't
dream about your ministry. आप अपनी सेवकाई के बारे में सपना ना रखें। I never think about my ministry. और मेरे सेवकाई के बारे में कभी नहीं सोचता I am हूँ। happy if God gives me an opportunity to preach. If not, also I am very happy. और प्रभु मुझे प्रचार करने के लिए मौका देता है, नहीं देता वे तो भी मैं खुश हूँ। But I am thinking about the glory of God. लेकिन मैं प्रभु की महिमा के बारे में सोचता I हूँ। am thinking how beautiful it is. और हम सोचता हूँ कि कितना सुंदर है वो, How much more I can experience. और कितना अधिक मैं इसको अनुभव कर How पाऊँ, much more I can know. और कितना अधिक मैं इसको जान पाऊँ। Anointing has levels. और अभिषेक की कई स्तर हैं, And it will come to a standing point. लेकिन एक जगह ऐसे भी आएगा वहां पर रुका जाएगा। But glory is not like that. लेकिन महिमा ऐसा नहीं है, It is unlimited like our God. और असीमित अनुभव है महिमा की अनुभव। This is why इसलिए you will never get bored in heaven. इसलिए आपको स्वर्ग में बोरिंग नहीं लगेगा, In meetings you will get bored. और मीटिंग में आपको बोरिंग लगेगा। Even if I preach well also you will get bored. आप अच्छा प्रचार करेंगे तो भी आपको बोर लगेगा, But in heaven you will never get bored. लेकिन स्वर्ग में ऐसा नहीं होगा। Every moment there is a new revelation of the glory of God. हर पल जो है महिमा की एक नई प्रकाशन प्रकट होते So रहेगा, you are excited to see that. और आप उसको पाने के लिए आनंदित रहेंगे। This is a realm of your glory. This is a realm of your grace. I can feel your mighty power. It is moving in this place. This is a realm of your glory. This is a realm of your grace. I can feel your mighty power. It is moving in this place. Singing, holy, holy, singing, holy, holy. Moses sang, show us your glory. Glory, show us your glory. Glory. Moses desired the glory of God. मूसा ने महिमा की उस उपस्थिति को चाहा, And God showed him the glory. और परमेश्वर ने महिमा दिखा भी दिया। Now, this is not a revelation which I am saying for the next 3 minutes. और अगले कुछ समय के लिए यही प्रकाशन मैं आपके बीच में साझा करूंगा। This is not a revelation. അടുത്ത 3 മിനിറ്റ് പറയുന്ന revelation അല്ല. ഇതുവരെ പറഞ്ഞ revelation ആണ്. अभी तक जो मैंने बोला ये प्रकाशन, अगले कुछ समय हम कुछ और बात कहेगा, ഇത് എൻ്റെ ഒരു imagination ആണ്. और ये मेरा एक कल्पना है। മലയാളി പാസ്റ്റേഴ്സായ ഞങ്ങളൊക്കെ പ്രസംഗിച്ചു, ദൈവം മോശയെ ശിക്ഷിച്ചു, വാഗ്ദത്ത ദേശത്ത് കടത്തി വിട്ടില്ല എന്നുള്ള. और हम अक्सर प्रचारक लोग ऐसे प्रचार किया, परमेश्वर ने मूसा को सजा दिया, वायदा किए हुए देश को प्रवेश होने नहीं दिया। എൻ്റെ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഞാൻ പറയാം. मेरे एक समझ में बताता हूँ, മോസസും ദൈവവും ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്സ് ആണ്. और मूसा और परमेश्वर जो है बहुत ही करीबी मित्र है। ബൈബിൾ പറയുന്നു ഭൂമിയിൽ മോശയെ പോലൊരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. बाइबल में ऐसे बताते हैं मूसा के समान कोई जन नहीं था इस पृथ्वी में। 40 ദിവസം വെള്ളവും ആഹാരവും ഇല്ലാതെ അവർ സംസാരിക്കുകയാണ്. और 40 दिन बिना खाए पिए आपस में बात कर रहे हैं। എന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര റൊമാൻറ്റിക് അവര്. और वे दोनों काफी रोमांटिक है मेरी भाषा में बोले। അവര് രണ്ടുപേരും കൂടെ മിണ്ടി തുടങ്ങിയ താഴെ അഹരോൻ കാളക്കുട്ടി ഉണ്ടാക്കിയെന്നോ യോശുവ അപ്പുറം ഇപ്പോഴും രണ്ടുപേർക്കും ഓർമ്മയില്ല. और जब बातचीत शुरू हो गया है, नीचे जो है लोगों ने मूर्ति बनाकर आराधना कर रहे, कोई चिंता नहीं है वहां के बारे में। ഭയങ്കര ഇന്റിമസിയാ. और बहुत ही बड़ी एक घनिष्ठता है। ഇന്റിമസി ഉള്ളത് കൊണ്ട് जब ऐसे के करीबी संबंध होने के कारण എന്റെ ഒരു സംശയമാണ്, मेरा संदेह यही है, ഇവർ തമ്മിൽ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്തു. और ये दोनों एक एडजस्टमेंट किया है। മോശ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു, मूसा प्रभु से कहा, അതെ ഞാൻ അങ്ങയുടെ മഹത്വത്തെ കണ്ടു. मैं आपकी महिमा देखा हूं। ആ മഹത്വം वो महिमा വാഗ്ദത്ത ദേശത്തെക്കാളും സൗന്ദര്യമുള്ളതാണ്. वायदा किया हुआ देश से भी अधिक सुंदर है। എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട, मुझे वहां तक जाना नहीं है, എനിക്ക് അങ്ങയുടെ മഹത്വത്തിൽ വസിക്കണം. मुझे आपकी महिमा में ही बने रहना है। ദൈവം പറഞ്ഞു, प्रभु ने कहा, മോശേ हे मूसा, 120 വയസ്സായി നിനക്ക്, तुझे 120 साल उम्र हो गया, നിനക്ക് ക്യാൻസർ ഇല്ല, कैंसर नहीं है, ലിവർ സിറോസിസ് ഇല്ല, लिवर सिरोसिस नहीं है, ഡയബറ്റിസ് ഇല്ല, डायबिटीज नहीं है, നിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരു ബലഹീനതയും ഇല്ല. तेरे शरीर में कोई कमी नहीं है। പക്ഷെ നീ മരിച്ചാലേ മഹത്വം കാണാൻ ഒക്കത്തുള്ളൂ. तू मर जाएंगे तभी तू और महिमा देख നീ पाएंगे। ഫിസിക്കലി മരിക്കത്തുമില്ല. तू शारीरिक रूप से मरेंगे भी नहीं। ഞാൻ തന്നെ വരാം,
हम खुद आ जाएंगे। ഫസ്റ്റ് ടൈം ബൈബിൾ എഴുതിയിരിക്കുക, ആദ്യമായിട്ട് लिखा है पवित्र शास्त्र में पहली बार ദൈവം ഒരു മനുഷ്യനെ അടക്കി. परमेश्वर एक व्यक्ति को दफनाया है। सोचिए इसके बारे में। ആർക്കും അറിയത്തില്ല അത് എവിടെയാണ്. किसी को आज तक पता नहीं है कहां दफनाया गया। നമ്മൾ ഇന്നും വാഗ്ദത്ത ദേശം കിട്ടുമോ, അമേരിക്കയിൽ പോകാൻ പറ്റുമോ, കാനഡയിൽ പോകാൻ പറ്റുമോ, മിനിസ്ട്രി സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മോശ പറയുകയാണ്, അതിനല്ല ദൈവം നിന്നെയൊക്കെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്, അവന്റെ മഹത്വത്തെ ദർശിപ്പാനാണ്. हम क्या सोच रहे, वायदा किया हुआ देश में जाना है, अमेरिका जाना है, कनाडा में जाना है, लेकिन मूसा बोल रहा है मुझे वो सब चीज के लिए नहीं बुलाया गया है, मुझे सिर्फ महिमा देखने के लिए बुलाया है। ഈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കാം शायद ऐसे का एडजस्टमेंट था आपस में, इसलिए മറുരൂപ മലയിൽ वो जो रूपांतर की उस पहाड़ में യേശുവിനെ ഗ്ലോറിയസ് ആയിട്ട് വെളിപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ और यीशु मसीह अपने महिमा में जब प्रकट हुआ, ഏറ്റവും അടുത്ത് നിന്ന് കണ്ടത് മോസസ് ആണ്. और उस समय मूसा करीब से उसको देख पाया। നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം ഇറ്റേണിറ്റിക്കകത്ത് പോലും നിലനിൽക്കുന്ന ആഗ്രഹമായിരിക്കണം ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ച്. आनंद काल का जिंदगी में भी आपकी चाहत ही होना चाहिए, मुझे महिमा ही देखना എനിക്ക് है। എങ്ങനെങ്കിലും സ്വർഗത്തിൽ പോകുക എന്നുള്ളതല്ല, कैसे भी हो स्वर्ग जाना ये ना सोचे, എനിക്ക് അവന്റെ മഹത്വം കാണണം. मुझे उनकी महिमा देखना है। മറുരൂപ മലയിൽ മറയില്ല മഹത്വം, തേജസ്സും ശോഭയും മഹിമയും കണ്ടു ഞാൻ. മറുരൂപ മലയിൽ മറയില്ല മഹത്വം, തേജസ്സും ശോഭയും മഹിമയും കണ്ടു ഞാൻ. വരുന്നു നാഥാ അങ്ങേ കാണുവാൻ, വരുന്നു പ്രിയനേ ശബ്ദം കേൾക്കുവാ, ഇതിലും ആഴമായി അങ്ങ് സ്നേഹിപ്പാൻ, ഇതിലും ആഴമായി അങ്ങേ സേവിപ്പാൻ. I wish days will come when Hindi translators will translate all these songs that we are singing related to the glory of God into Hindi as well. और हम यही विश्वास करते आने वाले दिन में जो महिमा से जुड़े हुए गीतों की अनुवाद हिंदी में भी होगा, ताकि हम सब मिलकर गा पाए। David prayed, दाऊद ने प्रार्थना किया, Moses desired. मूसा ने चाहत रखा। Don't stop with your prayers. आपकी प्रार्थना बंद ना करें, Desire for the glory of God. महिमा की चाहत रखें। Even today I am desiring for His glory. आज भी इस महिमा के लिए एक बड़ी इच्छा मेरे अंदर है। I tell the Lord, I am not satisfied with Holy Spirit revival. और हम पवित्र आत्मा की उस बेदारी से संतुष्ट नहीं हुआ I am हो। thankful to God. हम इसके लिए धन्यवादित जरूर है, I want to see your glory. और आपकी महिमा अभी भी देखना I है। want to see your glory. अभी भी आपकी महिमा और देखना है। Isaiah 6 verse number 3. आयशिया की पुस्तक 6वें अध्याय की 3री आयत, Isaiah 6 verse number 3. और आयशिया की पुस्तक 6वें अध्याय की 3री आयत। The angels said to one another, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of His glory. वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं की यहोवा पवित्र 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 है। ഇതുവരെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ പവിത്ര പവിത്ര എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒത്തിരി പാട്ടിലുണ്ട്. പക്ഷേ സ്വർഗത്തിൽ ദൂതന്മാർ പവിത്ര പവിത്ര എന്ന് മാത്രമല്ല പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അന്യോന്യം പറയുകയാണ്, മധ്യപ്രദേശ് മുഴുവനും ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു, ബാംഗ്ലൂർ മുഴുവനും ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. और पवित्र 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 ये बात हम अक्सर सुनते हैं, हम बोलते भी हैं, लेकिन वहां पर इतना तक सीमित नहीं रखा। आगे लिखा है पूरा मध्य प्रदेश प्रभु के महिमा से भर गया है, बैंगलोर प्रभु का महिमा से भर गया है, ये भी इस वचन में छुड़ा हुआ है। In heaven
Not just angels are saying holy, holy, holy to one another. और स्वर्ग में स्वर्गदूत आपस में ये सिर्फ नहीं कह रहा है कि परमेश्वर पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है, They are prophesying और वे भविष्यवाणी भी कर रहे that हैं whole earth is full of God's glory. और सारे पृथ्वी उसके तेज से भरपूर भी है। David prayed, और दाऊद ने प्रार्थना किया Moses desired, और मूसा ने चाहा, Isaiah saw what is happening in heaven. लेकिन आइशिया ने स्वर्ग में क्या है उस महिमा को देखा। Your ministry should not be on your experience. आपकी सेवकाई अनुभव के आधार पर नहीं होना Your चाहिए। ministry should not be driven by your fleshly desires. आपकी शारीरिक इच्छाओं के अनुसार सेवकाई नहीं चलना Your चाहिए। ministry should be hearing what God is speaking in the realms of God's glory. और प्रभु की महिमा की क्षेत्र में परमेश्वर जो बोल रहा है उसके अनुसार आपकी सेवकाई होना है। David prayed, दाऊद ने प्रार्थना किया, Moses desired, मूसा ने चाहा, Isaiah saw. आइशिया ने देखा है। Number 4, चौथी बात, Habakkuk chapter 2 verse number 14. और हबक्कुक की पुस्तक 2 अध्याय की 14वीं आयत, Habakkuk chapter 2 verse number 14. और हबक्कुक 2 की Just as waters are covering the seas, so shall the knowledge of the glory of God fill the earth. यहाँ पर लिखा है क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा की ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। David prayed, दाऊद ने प्रार्थना किया, Moses desired, मूसा ने चाहा, Isaiah saw, एशिया ने देखा, Habakkuk prophesied. और हबक्कुक ने भविष्यवाणी किया। You get up every day and prophesy the glory of God. और हर दिन उठ करके प्रभु की महिमा की भविष्यवाणी करें आप। During the COVID, और कोविड की समय our church became 30 people. 30 பேர் ஆகி போய். और हमारे कलीसिया में 30 लोग हो गया है It dropped heavily और बहुत ज्यादा मात्रा से कम हो because गए। everyone went away from Bangalore. बैंगलोर से सब लोग चले गए। So those days, उन दिनों में I used to say, मैं कहता था, looking at 30 people, 30 लोगों को देखकर कहता the था, glory of God will fill this church. और प्रभु की महिमा इस कलीसिया में भर जाएगी। You will not get space to sit in this church. और यहाँ पर बैठने के लिए आपको जगह भी नहीं मिलेगा। You will have to stand outside. आपको कलीसिया के बाहर खड़ा होना Hundreds पड़ेगा, of people will come inside. क्योंकि इतने ज्यादा लोग बाहर से आएंगे अंदर। So people were looking at me. लोग हमारी तरफ देखते थे, हमारा पासों को कुछ ना कुछ हो गया. हमारा पासवान को कुछ हो गया है। When revival happened, जब जागृति वहां पर उतर आया, our church people had to sit outside. हमारे कलीसिया के विश्वासियों को बाहर बैठना पड़ा, Hundreds of people sitting inside the church. और सैकड़ों लोग अंदर आकर बैठने लगे जो बाहर से आए हैं। David desired, David prayed, और दाऊद ने प्रार्थना किया, Moses desired, मूसा ने चाहा, Isaiah saw in visions, आइशिया दर्शन में देखा, Habakkuk prophesied. हबक्कुक ने भविष्यवाणी किया। What you prophesy will happen, my dear brother and sister. प्रिय भाइयों बहनों, जो कुछ आप भविष्यवाणी करेंगे वैसा ही प्रभु करेंगे। So you remember the flow? आपको समझ में आ रहा है किस तरफ से ये बात हो रहा है। David, दाऊद ने क्या किया है? जोर से बोले, दाऊद ने क्या किया है? वाह. मोसेस ने क्या किया? डिजायर किया. आइज़ाया ने क्या किया? विजन्स को देखा. हबक्कुक ने क्या किया? Jesus gave the glory. और यीशु महिमा को दे दिया है। John chapter 17, यूहन्ना की सुसमाचार 17वां अध्याय verse number 22. और 22वीं आयत। John chapter 17 and verse number 22. यूहन्ना की सुसमाचार 17 की 22वीं I will पद। speak on this verse tomorrow in detail. John chapter 17 verse number 22. Jesus says, "And the glory which you have given me, I have given them." वो महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है। दाऊद ने क्या किया? मोसेस ने क्या किया? आइज़ाया ने क्या किया? हबक्कुक ने क्या किया? यीशु ने क्या किया? But it didn't stop there. वहां पर रुका नहीं है। Nobody understood what is the secret or the revelation of God's glory. और परमेश्वर की जो महिमा की प्रकाशन के पीछे जो भेद है कोई नहीं समझ पाया। Only one person understood. केवल एक व्यक्ति जान पाया। Who is that? You want to guess? आप बोल सकते हैं कौन हो सकता है? No. John didn't understand it. He experienced it. Jesus gave.
यीशु ने तो दिया Yes, ही। who said that? If there are any mysteries in the Word of God, it is mostly understood by the greatest apostle of Jesus, Paul the apostle. पौलुस जो प्रेरित है उनके द्वारा परमेश्वर की इस महिमा की भेद को प्रकट किया गया। John and Peter, they saw Jesus and understood things. और यूहन्ना और पतरस यीशु को देख करके समझ पाया। Paul says, पौलुस के I didn't get anything from them. और हमको उनसे कुछ नहीं मिला है। It was a direct revelation from God when I was in the wilderness. और हम जंगल में था, परमेश्वर की ओर से मुझे सीधे प्रकाशन मिला है। What is the revelation that he got about the glory of God? और प्रभु की महिमा के बारे में क्या प्रकाशन उन्होंने मिला? 2 Corinthians 4:6. और दूसरा कोरिन्थी 4 की 6 2 में, Corinthians 4:6. दूसरा कोरिन्थी 4 की 6 2 में, Corinthians 4:6. दूसरा कोरिन्थी 4 की The 6, glory of God, the knowledge of the glory of God is on the face of Jesus Christ. और यहाँ पर लिखा है जो ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान होता Yeah, है। the knowledge of the glory of God. और महिमा की वो प्रकाशन Now, वही full verse. हमारे, Yeah. इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। Amen. आमीन। David prayed. दाऊद ने प्रार्थना की, Moses desired. मूसा ने चाहत रखा, Isaiah saw. यशायाह ने देखा, Habakkuk prophesied. हबक्कुक भविष्यवाणी किया, Jesus gave. यीशु ने दिया, Paul understood the revelation. और पौलुस इस प्रकाशन को समझ पाया। 6 points. 6 बातें कहा, But God never stops in the number 6. और 6 में रुकना नहीं है, There is a number 7. और 7 भी है। Can I tell it? क्या मैं बोल सकता हूँ 7वीं बात क्या है? Can I tell it? क्या मैं बोल सकता हूँ? Can I tell it? क्या मैं बोल सकता हूँ? Hebrews इब्रानियों की पुस्तक chapter 2 दूसरी अध्याय, and verse number 10. दूसरी अध्याय की 10वीं आयत। David prayed. दाऊद ने प्रार्थना किया, Moses desired. मूसा ने चाहा, Isaiah saw. यशायाह ने देखा, Habakkuk prophesied. हबक्कुक भविष्यवाणी किया, Jesus gave. यीशु ने दी दिया, Paul knew. और पौलुस जान पाया। But you and me are the glory carriers of the kingdom of God. और लेकिन हम और आप परमेश्वर की महिमा की वाहक बना है Because प्रभु the के Bible राज्य में। says many sons will be brought into the glory of God. क्योंकि यहाँ पर लिखा है कई सारे पुत्रों को महिमा की राज्य में प्रवेश You किया and me are the sons of the Almighty हम God. सब लोग परमेश्वर की पुत्र हैं। Listen, ध्यान से सुनिए, we are thinking everyone is waiting for Jesus, हम सोच रहे सब लोग यीशु की इंतजार में हैं, especially Pentecostal people. विशेष करके पेंतेकोस्त के लोग। Maranatha! मारानाथा, Jesus, eh? और यीशु Ayo, come quickly. जल्दी आ जाए। But you know what my Bible says? क्योंकि मेरा बाइबल क्या बताते मालूम? Come with me to Romans chapter 8 और रोमियो की पुस्तक 8वीं अध्याय and verse number 19. 19वीं आयत, Romans 8:19. रोमियो की पुस्तक 8 की 19। When we are all waiting for Jesus, हम सब लोग यीशु की इंतजार में हैं। Bible says बाइबल बताती है the whole world is eagerly waiting for the manifestations of the glorious sons of God. सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर की पुत्रों की प्रकट होने की बाट जो रही है। You didn't get that revelation. आपको शायद वो प्रकाशन नहीं मिला होगा, I think you're tired. शायद आप थक गया होगा। When I said David prayed, everyone said amen. जब मैंने बोला दाऊद ने प्रार्थना की, सब लोग आमीन बोला था। Moses desired, everyone said amen. और मूसा ने चाहा, ये बोलकर सब लोग आमीन बोला था। Isaiah saw, everyone said amen. यशायाह देखा, ये बोला तो सब लोग आमीन बोला। When I said Jesus gave, everyone was excited. यीशु ने दिया बोलने से सब लोग खुश थे, There it stopped. और वहां पर रुक गया। After that I said Paul knew nobody's excited. और पौलुस जाना बोलने से कोई खुश नहीं थे, Because we have been never taught this word like this. क्योंकि हम वचन को इस प्रकार कभी नहीं सिखाया है। We are all waiting for Jesus. हम सब लोग यीशु की इंतजार में हैं। എന്ന് തീരും എൻ്റെ കഷ്ടം ഇനി മണ്ണിലേ. All songs of expectation we are singing and waiting. और हम ये सारे इंतजार में हैं और यही गाना गा रहे हैं। Jesus is waiting and saying, when will you
manifest as my son here. और यीशु क्या चीज की इंतजार में है? कब तुम लोग मेरी महिमा प्रकट करने वाला पुत्र बनेंगे इस धरती पर। पास्टर जी, वो तो बहुत मुश्किल है पास्टर। हम तो मीटिंग में आना बहुत अच्छा लगता है, होली स्पिरिट स्कूल ऑफ होली स्पिरिट में बार बार आने बहुत अच्छा लगता है, सेवकाई करने बहुत अच्छा लगता है, लेकिन परमेश्वर का पुत्र, दिस रेवलेशन इज नॉट देयर इन द चर्च। और ये जो परमेश्वर की पुत्र महिमा को प्रकट करने का प्रकाशन कलीसिया में नहीं है। बट आई एम प्रेइंग, लेकिन मैं प्रार्थना करता दिस हूं कॉन्फ्रेंस विल मेक यू लाइक दैट, और ये कॉन्फ्रेंस ऐसे सक्षम बनाएंगे that आपको, you will understand you are the sons of God, और आप समझ पाएंगे आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। and the world is waiting for your manifestation. और संसार बड़ी आशी भरी नजर से आपको देखना चाहता है। Jesus is waiting for your manifestation. आपको प्रकटीकरण यीशु देखना चाहता That है। is when Jesus will prepare his bride for his second coming. और ऐसे यीशु मसीह अपने दुल्हन को दूसरी आगमन के लिए तैयार करना I चाहते will tell हैं। you one verse and I'm going to pray for you. एक और वचन बोलकर मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं। Jesus is not coming back for a powerful church. यीशु एक सामर्थी कलीसिया के लिए जल्दी नहीं आ रहे हैं, Jesus is not coming back just for a holy church. और एक पवित्र कलीसिया के लिए भी नहीं आ रहे हैं, सिर्फ पवित्र के, just for a holy church. और पवित्र कलीसिया सिर्फ पवित्र कलीसिया के लिए नहीं आ रहे हैं। Ephesians 5:27 says. और इफिसियों की पत्रिका 5:27 कह रहा है, Ephesians 5:27 says. और इफिसियों की पत्री 5:27 कह रहा He है, is coming back for a glory-filled church. और एक महिमामय तेजस्वी कलीसिया के लिए वो आ रहा है। हालेलुया। Their capacity is over today. शायद आपकी क्षमता खत्म हो गया है, I don't blame you, और हम आपको दोष नहीं देना चाहते, because when revelation comes, it is like that. और जब प्रकाशन आते हैं ऐसा होते भी है। The more you dig yourself with capacity, more revelations the Lord will pour. जितना ज्यादा क्षमता से आप खुदेंगे उतना ज्यादा महिमा प्रभु आपके ऊपर में उंडेलेगा। Jesus is coming back for a glorious church. यीशु मसीह एक तेजस्वी कलीसिया के लिए आ रहे हैं, And we still don't know much about the glory of God. लेकिन अभी तक हमें उस महिमा के बारे में ज्यादा But जानता that will नहीं। change after the conference. लेकिन ये कॉन्फ्रेंस के बाद वो All बदल of you जाएगा। will start getting the revelations of the glory of God. ओ महिमा की प्रकाशन हम सब लोग प्राप्त करेंगे, All of you will start getting the experiences of the glory of God. और महिमा की अनुभव हम सबको मिलने वाले All हैं। of you are going to be glory carriers, आप सब लोग महिमा की वाहक बनने glory वाले हैं, manifestors. और महिमा प्रकट करने वाले। If you believe it, I'm going to pray for you.